Hello student, good morning. As in the last lecture, we discussed about the minor and cofactors. And on the basis of minor or cofactor, we discuss how to define the adjoint of a matrix and the inverse of a matrix. So in this lecture, we discuss how to obtain the minors and cofactors with some problems and adjoint and the inverse problems. ठीक है, तो in the first problem we have to find all the minors and cofactors of the elements in the given matrix A is equal to 5, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 6. So, to find the minors and cofactor, we have to define the elements of the matrix as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So the given matrix is A is equal to 5, 4, 2, 2, 4, 3, 3, 2, 6, and these elements can be defined as the element at the position A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Now to find the minors, of the elements of the given matrix A, denote the minor with the sign M, capital M. The minor for the element A11 is M11 is defined as the minor of the element A11 and it is equal to the 2 cross 2 determinant obtained by leaving the row and column of the element A11. तो A11 एलिमेंट की हम A11 के लिए माइन्योर निकाल लें यानी पहले एलिमेंट के लिए, तो इसके लिए जब माइन्योर निकलेगा तो इसकी इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़कर जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट। तो उन एलिमेंट्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमको इसकी माइन्योर वैल्यू मिलती है। देन फॉर दिस एलिमेंट द माइन्योर इज, इसकी रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, तो एलिमेंट बचे 4, 3 एंड 2, 6। देन write the 2 cross 2 determinant of these 4 elements and calculate the determinant value. So the determinant is obtained by cross multiplying 6 4 ja 24 minus 3 2 ja 6. So it is equal to 18. Similarly, obtain the determinant of the second element of first row. M12 is equal to minor of A12 and it is equal to obtain the 2 cross 2 determinant by leaving the row and column of the second element of first row. तो इस एलिमेंट के लिए माइन्योर निकाल लें तो इसकी रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, 2 3 3 6, तो हमारे पास वैल्यू बची डिटर्मिनेंट की 2 3 3 एंड 6. देन अगेन ऑब्टेन्ड क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, देन इट इज इक्वल टू 3. Similarly, M13 is the minor of the element A13 and it is obtained by leaving the row and column of this element. 13 पोजीशन पे एलिमेंट है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 4 3 2, देन इट इज इक्वल टू 2 4 3 2, देन 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, then it is equal to minus 8. Similarly, the minor of the second row, that is element A21, is denoted by M21 and it is equal to minor of A21. So it is obtained by leaving the row and column of this element. इस एलिमेंट की रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे. Then the determinant is 4 2 2 6. So the determinant value is 4 2 2 6 and it is equal to 6 4 ja 24 minus 2 2 ja 4 is equal to 20. ठीक है. Similarly, M22 is equal to the minor of element A22 and it is obtained by
लिविंग द रो एंड कॉलम ऑफ A22 एलिमेंट। तो A22 एलिमेंट ये एलिमेंट है, इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, देन 5 2 3 6, सो इट इज़ इक्वल टू 5 2 3 6 and it is 6 5 जा 30 minus 3 2 जा 6, then it is equal to 24. Similarly, M23 is equal to minor of A23 and it is equal to determinant solve करो A23 के लिए। तो A23 के लिए बनेगा, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 5 4 3 2, then it is equal to 5 4 3 2 and it is equal to 5 2 जा 10 minus 4 3 जा 12, then it is equal to minus 2। ठीक है। सिमिलरली द माइन्योर फॉर M31 थर्ड रो के लिए, माइन्योर फॉर एलिमेंट A31, देन इट इज इक्वल टू A31 के लिए माइन्योर देखो, तो माइन्योर फॉर A31 इस एलिमेंट के लिए माइन्योर निकालेंगे तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 4 2 4 3, सो इट बिकम्स 4 2 4 3, so it is equal to 4 3 जा 12 minus 4 2 जा 8, then it is equal to plus 4. Then M32 is the minor for element A32 and it is equal to M32 वैल्यू देखो, M32 पोजीशन ये है, तो इसके लिए अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी रो को छोड़ देंगे, इसकी कॉलम को छोड़ देंगे, then the element becomes 5 2 2 3, so it is equal to 5 2 2 3, फाइव 3 जा 15 minus 2 2 जा 4, then it is equal to 11. And last one is M33 is the minor for element A33, so it is equal to M33, तो A33 का माइन्योर देख लो, ये पोजीशन है A33, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 4 2 4, so it becomes 5 4 2 4 and it is equal to 5 4 जा 20 minus 4 2 जा 8 is equal to 12. So these are the determinant minor values. तो ये हैं आपकी minor values of all the element of the matrix A. Now to obtain the cofactors, अब इसके अगर हम cofactor निकालते हैं तो cofactor is simply assign the sign of the position of element to the minor. हर एक minor वैल्यू के संग उसके पोजीशन का साइन असाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी कोफैक्टर वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने अल्टरनेट साइन पढ़े थे, द फर्स्ट पोजीशन इज प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस। तो ये जो साइन है आपके पोजीशन साइन है मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट के, उसकी रो और कॉलम के बेसिस पे साइन हम असाइन करते हैं -1 की पावर i प्लस जे, वेयर i इज द रो एंड j इज द कॉलम, कि वो एलिमेंट किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। तो ये एलिमेंट जैसे आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 दैट इज़ 2, और अगर माइनस की पावर इवन होती है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, माइनस की पावर ऑड होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, जैसे इस केस में है 1 2, तो i = 1 j = 2, दैट इज़ 2 + 1 = 3, -1 की पावर 3 = ऑड नंबर आ रहा है तो इट इज़ इक्वल टू माइनस। तो अब हम क्या करते हैं, जो माइनर से निकले हैं उनमें अल्टरनेट साइन लगाते हैं तो हमें कोफैक्टर से मिल जाते हैं। देन द कोफैक्टर बिकम्स C11 is equal to cofactor of A11, then it is equal to alternate में minus, then M11 and M11 value is 18, प्लस, पहला पोजीशन प्लस होता है, -1 की पावर 1 + 1 प्लस M11 and the value of M11 is 18, so it is 18. C12 is equal to cofactor of A12 and it is equal to, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, M12 की वैल्यू अगर वहाँ पर देखोगे आप तो इट इज़ इक्वल टू 3, सो इट बिकम्स -3.
C13 is equal to cofactor of A13 and it is equal to plus M13. माइन्योर वैल्यू ले लेंगे, देन इट इज़ इक्वल टू, वहाँ पर आपकी वैल्यू आई है माइन्योर की M13 इज इक्वल टू -8, सो इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -8. सिमिलरली C21 is equal to cofactor of A21 and it is equal to minus M21 and it is equal to, साइन है नेगेटिव, वैल्यू थी वहाँ पर 20, तो इट इज़ इक्वल टू -20. देन C22 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A22 and it is equal to प्लस, माइनस के बाद प्लस M22 and it is equal to 24. Then C23 is equal to cofactor of A23 and it is equal to minus M23. Then it is equal to, वहाँ -2 आ रहा था तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2. ठीक है, ये वैल्यूज़ M11 M22 की M की वैल्यू जो माइन्योर्स हैं इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है. जैसे M23 इज इक्वल टू -2 है, उसका पोजीशन साइन माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली C31 द कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू प्लस, इसका साइन प्लस होगा M31 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4. M31 की वैल्यू कितनी थी 43. C32 is equal to cofactor of A32 and becomes minus M32 and it is equal to minus 11. Then C33 is equal to cofactor of A33 and it is equal to plus M33 and this value is equal to 12. So these are the minors or cofactors of a given matrix. तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स को कोफैक्टर्स से निकाल सकते हैं. अब इनके बेसिस पे हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट. तो एडजॉइंट हम पहले डिस्कस कर लेते थे. एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम दी है मैट्रिक्स के सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की प्रॉब्लम. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वी कैन डिफाइन टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. द फर्स्ट वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A matrix is said to be a singular matrix if its determinant value is 0. अगर किसी मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 आती है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. एंड द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. ठीक है. तो यहाँ पर हमको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो हमसे कहा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो ये मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. So if A is a singular matrix, then determinant of A must be is equal to 0 and the determinant of matrix A becomes 1 minus 1 2 2 3 5 and lambda 0 1. इट बिकम्स 0. अब हमको पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. तो जनरली मैंने कहा था उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो जिसमें जीरोज अकर हो रहे हैं. तो हम देख रहे हैं रो 3 में 0 आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में अकर करते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. ठीक है. तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो R3, इसको R3 रो हम कहेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका साइन होगा प्लस माइनस देन प्लस. तो यह आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट -1 2 3 5, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया. देन -0, 0 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. +1 इंटू डिटर्मिनेंट. अब इस 1 के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसकी रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे. 1 -1 2 एंड 3, देन इट बिकम्स 0. Now it is equal to lambda into 5 into -1 is equal to -5, बीच में साइन माइनस, 3 2 जा 6 प्लस 1 इंटू 3 1 जा 3 माइनस
2 into -1 is equal to -2 is equal to 0. So it is equal to -11 lambda. ये हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0. सो इट इज़ -11 lambda is equal to -5 and lambda is equal to -5 upon -11. So it becomes 5 upon 11. So this is the value of lambda for which the given matrix is a singular matrix. ठीक है. Now the next topic is adjoint of a matrix. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सिंपली अगर हम कहते हैं इफ़ ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड सी आई जे बी द मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर्स. ठीक है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर एन की और सी आई जे हमने एक मैट्रिक्स बनाई है उसके कोफैक्टर की. कैसे निकालेंगे कोफैक्टर अभी हमने डिस्कस किया था. उन कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के अगर उसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए. तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट हमने निकालना है तो सबसे पहले हम उसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं. कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग पोजीशन में उनके कोफैक्टर प्लेस करके उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑपरेशन भी हमने पढ़ा है. ट्रांसपोज ऑपरेशन में क्या करते हैं, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज करते हैं. तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उससे जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए डी जे ए. फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 is a given matrix, square matrix of order 3 and Cij is the matrix of its cofactor, that is the matrix of C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Then the transpose of this matrix is called the adjoint. तो कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगी. ठीक है, अब इसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. नाउ फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 -3 -1 2 एंड 3. ठीक है, तो नाउ इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स. अगर मुझे क्या निकालना है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है. तो मैट्रिक्स हमें दी है 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3. अब कोफैक्टर निकालने के लिए माइन्योर निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कोफैक्टर डिफाइन कर सकते हैं. देन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Assign the sign of the position. This is plus minus plus minus plus minus plus minus plus. ठीक है, now find the cofactors. तो कोफैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो C11 द कोफैक्टर ऑफ A11 एंड इट इज़ इक्वल टू, इसका साइन प्लस होता है. कोफैक्टर निकालने के लिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर A11 पोजीशन पे, इसकी रो को छोड़ दो कॉलम को छोड़ दो, तो 1 -3 2 3 देन इट इज़ इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 देन इट इज़ इक्वल टू 9. सिमिलरली C12 कोफैक्टर ऑफ A12 इट्स साइन इज माइनस, वहाँ पर साइन असाइन किया हुआ है. इसके लिए इसकी रो को छोड़ देंगे, इसकी कॉलम को छोड़ देंगे. देन 2 -3 -1 एंड 3 देन इट इज़ इक्वल टू माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से माइनस आ जाएगा. 3 1 जा 3 देन इट इज़ इक्वल टू -3. C13 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A13 एंड इट इज़ इक्वल टू प्लस, इसके लिए इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे. देन इट बिकम्स 2 1 -1 2. सो इट इज़ इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, यह आएगा -1 फिर एक माइनस आता है बीच में तो +1 इज इक्वल टू 5. देन अगेन C21 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू माइनस, इसका साइन माइनस होगा. अब A21 निकालने के लिए A21 ये है, इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 1 2 3 देन इट बिकम्स 1 1 2 3. सो इट इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 3 1 जा 3
माइनस टू वन जा टू, यह आएगा 1, देन इट बिकम्स माइनस 1. देन C22 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 इज इक्वल टू, यह आएगा प्लस, A22 पोजीशन पे एलिमेंट है आपका 1, इसकी रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, तो 1 1 माइनस 1 3. सो इट बिकम्स 1 1 माइनस 1 3. सो इट इज़ इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 1 इंटू माइनस होगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 4. देन नेक्स्ट इज C23 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू, अब A23 पोजीशन देखो, A23 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 1 माइनस 1 2, देन इट इज़ 1 1 माइनस 1 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 2 1 जा 2, सॉरी इसका साइन प्लस है तो इसका क्या होगा, माइनस होगा, तो बाहर से साइन आएगा माइनस, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3. सिमिलरली A31 कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स M31 सॉरी C31 कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A31 इज इक्वल टू, इसका साइन प्लस होगा 3 1 का, देन इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ 1 1 1 माइनस 3, देन इट इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 3. सो इट इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, सॉरी माइनस 3 माइनस 1 1 is equal to minus 4. Then again C32 is equal to cofactor of matrix A32 is equal to, इसका साइन माइनस होगा, अब 3 2 पोजीशन देखो, 3 2 पोजीशन ये है, इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 2 माइनस 3. सो इट बिकम्स 1 1 2 माइनस 3. सो इट इज़ इक्वल टू माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस 3. माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 5, सो इट बिकम्स 5. ठीक है. देन C33 इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट A33 इज इक्वल टू, इसका साइन होगा प्लस, तो लास्ट एलिमेंट देखो, इसकी रो को छोड़ दो, कॉलम 1 1 2 1, सो इट बिकम्स 1 1 2 1. सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस 1. सो दीज आर द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो इस तरह से हम पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे, देन फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. अब इन कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, देन द मैट्रिक्स ऑफ cofactors. So the matrix of cofactor is denoted by Cij is equal to the matrix of cofactors, then C is equal to C11 C12, जो भी एलिमेंट आपके कोफैक्टर के आए हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रख देंगे, C21 C22 C23 C31 C32 C33. तो पीछे जो हमने एलिमेंट निकाले अगर उनको रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रखते हैं तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 9 माइनस 3 5 माइनस 1 4 माइनस 3 एंड माइनस 4 5 माइनस 1. सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. नाउ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का. मैट्रिक्स है 9 माइनस 3 5 माइनस 1 4 माइनस 3 एंड माइनस 4 5 माइनस 1. देन फाइंड द ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. देन 9 माइनस 3 5 फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 4 माइनस 3 सेकेंड कॉलम, यहाँ सेकेंड रो है, माइनस 4 5 माइनस 1 थर्ड कॉलम.
सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकाला, तो एडजॉइंट के बाद हमारा आता है इनवर्स। ठीक है, तो जो दूसरा टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया था वो था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम कहते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, देन द सेकंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और द फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, सो इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर हमको एक मैट्रिक्स ए दी है जो ऑर्डर एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड दियर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, और उसी ऑर्डर की एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स वहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है कि अगर मैट्रिक्स ए में बी को मल्टीप्लाई करते हैं या बी में ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की, देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, या फिर हम ए को भी बी का इनवर्स कह सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी आ रही है तो बी किसका इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा, या ए किसका इनवर्स होगा, बी का इनवर्स होगा, एंड द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। सो if AB is equal to BA is equal to Y, then B is equal to A inverse, that is A into A inverse, यानी एक में A inverse से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, बट देयर इज सम नेसेसरी कंडीशंस। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि द मैट्रिक्स is invertible if and only if, necessary and sufficient condition इसको हम कहते हैं if and only if। तो a matrix is invertible if and only if it is non singular, और non singular means the determinant value is non zero। कोई भी मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या पॉसिबल है अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक दूसरी मेथड भी है जो हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, दिस मेथड इज़ नॉन इन आवर कोर्स सिलेबस। तो ये मेथड हमारी कोर्स सिलेबस में नहीं है, तो हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे जहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। तो जनरली जब भी आपसे इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करें, उसका इनवर्स निकालें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ही जीरो है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है, दैट इज हेंस इट इज नॉट इन्वर्टेबल, तो मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टेबल नहीं होगी। बट इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यूज डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो नहीं है देन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। देन फाइंड द कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो उसके बाद हम कोफैक्टर और एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं उसी मैट्रिक्स का। एंड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग द फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सम थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, विच इज ऑल्सो ए वीडियो लेक्चर। ठीक है।